Today, SureShot Academy has had a MOU with the Art of Living to conduct mind management and capacity building programs. आपके ट्रूप्स अगर मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, आपके ट्रूप्स क्रिश्चियन हैं, ऑफिसर क्रिश्चियन होता है, तो ये बहुत बड़ी टीचिंग है। और सब ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಯೂತಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ क्या है, सबको साथ लेके चलने की, वसुधैव कुटुंबकम, ये टीचिंग इंडिया की है। देश का और हमारा पूरे समुदाय का मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी लोग भी धीरे धीरे आंखों के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अब सर्व धर्म हमारे वहां एक छत के नीचे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ एक छत के अंदर में होता हमारा। It's a rekindling of pride in oneself. To speak of me, पीपल फ्रॉम बीपीएल कैटेगरी, हमने उनकी फीस 20 से 25% कम रखी। निष्पक्ष, कंप्लीटली किसी रिलीजियस कम्युनिटी से कोई इसका वो नहीं। हम देश की एकता के लिए also just queue up for that? Sorry, that's not the way. And guys, if your intention is clear, your goal is clear, your mission is clear, the second thing which drives you towards your goal, which makes it part of your subconscious, is your passion. Have a passion. I can make out the passionate person in 5 minutes of the interview. You see a passionate guy, oh my God, the kind of knowledge he will have about the armed forces. You ask him anything so clear-headed, you ask him which regiment, why he wants to go, oh my God, you can make out by his answer, yes, it is deep-rooted desire in him. What kind of candidates pass and what kind of candidates fail? So I reached to 6 points. That's called my, if you are not so a guy who doesn't know where the hell he is going, God knows where he will reach you. If you don't know where you are going, God can't help you. God helps those who are sure of themselves. As simple as that. Which matters in life. It is your ability to rise with greater resolve and greater determination. That's what the commitment is. See the difference between a sexual man, other guy will very curse the whole world and not right thereafter. Look at the person who's free. Oh my God. Take the positive things out of nothing. Whereas a negative guy, oh my God, he can create negativity out of anything. He brings so very your mind, subconsciously, how positive you are. So, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। I would like to that I could withstand such tight schedule, and now I know that I have greater potential in me and all of us present here. उसने जिस मैदान में अपना खून पसीना बहाया था, वर्दी को पाने का सपना उसने अपनी आंखों में सजाया था। कर डाली थी हर दिन रात एक, जब तक कामयाबी उसके कदमों में नहीं आई थी। समय भी झुक गया था उसकी मेहनत के आगे, जब उसने अपने तन पर वर्दी सजाई थी। So, good morning friends. So, I came here a little bit late. It was the 6th day of the course when I joined, and I was lost, I want to tell you that. With the aim and goal of IIT. It was my life's aim to get there. And I study very hard. I did not study very hard 11th and 12th because I don't know, I think I had an inkling that IIT was not for me, and I did fail. And I don't know,
you feel lost when something you worked for almost your whole life is gone. So, sir's words on YouTube, sir's lessons, he taught me that I cannot do this with half of my heart in it. I need to go full on or don't try at all. So that's why I came here. I joined. I learned a lot of things. I made lots of new friends. So, morning, gentlemen. Why are you so serious? See, only one thing I will tell you to go in SSB. Smile. The only reason why candidates fail in SSB, they don't act smile. They don't smile at all. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी स्माइल सर एक मिनट स्माइल एक ही अकेडमी विजय 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 भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के सीनियर कोर्स आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आखिर में इस एकेडमी का पर्पस क्या है और ये एकेडमी साउथ इंडिया में क्यों खोली और ज़्यादातर हम लोग इसको नॉर्थ इंडियंस चला रहे हैं इस एकेडमी को। देखिए, व्हेन आई वाज पोस्टेड हियर एज कमांडेंट, मैं यहाँ सिलेक्शन सेंटर का हेड था जब साउथ इंडिया का, उस समय मेरी मुलाकात दो बहुत ही विजनरी लोगों से हुई और जिनका श्रेय, जिनको मैं इस एकेडमी का पूरा श्रेय देता हूँ। पहले थे श्री के.एम. श्रीनिवास मूर्ति जी, जो कि हमारे चेयरमैन हैं। और आप सोचिए, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने उनको डिस्कस किया और उनको मिलाने वाले मेरे साथ थे मिस्टर जी.एम. बापू, महादेवन बापू। आप उनको जानते हैं, सारा बेंगलोर उनको जानता है। वो आर्म फोर्सेस के बड़े फ्रेंड हैं और वो कर्नाटका के यूथ के लिए कुछ करना चाहते थे। जो हमारे के.एम. श्रीनिवास जी का एक विजन था कि क्यों ना कर्नाटका के यूथ को एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिसर बने। तो हमारी मुलाकात मेरे ऑफिस में हुई और ये एकेडमी मैं नॉर्थ इंडिया में खोल रहा था। तो उन्होंने एकदम मुझे इस यहाँ आने का इनवाइट किया और उन्होंने इतनी बड़ी लैंड मेरे को 28 एकड़, मैं बोला कि आप इधर एकेडमी शुरू कीजिए, आप साउथ में रहिए। और उनकी वजह से मैं साउथ में सेटल हुआ और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के सपोर्ट से ये एकेडमी की शुरुआत हमने की। आज ये एकेडमी इंडिया की नंबर 1 एकेडमी है। आज आपके सामने पिछले 3.5 साल में इसने 392 ऑफिसर्स इंडियन आर्मी को दिए हैं और आप देख रहे हैं कि हर कोर्स इस एकेडमी में फुल होता है। सबसे कम फीस हमें इस एकेडमी की है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ ट्रेन होना चाहते हैं। आपने यूथ का जोश देखा। इस कोर्स में भी आधे लोग स्ट्रेट वे ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग और इसका मकसद ये है साउथ इंडिया के यूथ को जगाना, साउथ इंडिया के यूथ को आर्म फोर्सेस के लिए प्रोत्साहित करना, साउथ इंडिया के यूथ को इसके द्वारा हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हर यूथ को आज पता है एसएसबी शोर शॉट एकेडमी के बारे में। हर यूथ आज यहाँ ज्वाइन करना चाहता है। आप देखेंगे अभी भी आधे से ज़्यादा लोग नॉर्थ इंडिया के हैं इस एकेडमी में अब, लेकिन धीरे धीरे साउथ इंडिया के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। तो इसी के बाद हमारा नेक्स्ट विजन है, विद द हेल्प ऑफ आवर चेयरमैन एंड मिस्टर महादेवन बाबू, वी आर कॉन्टैक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ऑलरेडी हमारी चिट्ठी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जा चुकी है। बहुत जल्दी हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और जो कॉन्सेप्ट पंजाब और महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए एक ऐसा स्कूल खोले जाए जो कि उनको सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए डायरेक्ट करेगी, ट्रेन करेगी। और उन यूथ को जो है हम सेलेक्ट करके इस एकेडमी में हम डालेंगे, जो कि गवर्नमेंट के सहयोग से हम चलाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटका के और साउथ इंडिया के यूथ आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से आर्म फोर्सेस ऑफिसर काडर में कम से कम 38% होना चाहिए, लेकिन है कितना? मुश्किल से 12-13%।
तो ये गैप को हमने कवर करना है। कम से कम 22 से 23% ज़्यादा लोगों ने यहाँ से ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके सहयोग से अगर ये बात कर्नाटका के और साउथ इंडिया के हर यूथ के पास चली जाएगी, तो धीरे धीरे हम इस एकेडमी को न केवल कर्नाटका के लिए बल्कि सारे देश के लिए एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स जो है सेलेक्ट हों और यूथ को ट्रेन करके उनका मार्गदर्शन ऑफिसर बनने के लिए हम कर सकें। कुल इन्होंने बहुत सही बात कही। देखिए, आज जो है धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी लोग भी धीरे धीरे आर्म फोर्सेस के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अब इसी की वजह से आप देखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी प्लस पीपल फ्रॉम बीपीएल कैटेगरी, हमने उनकी फीस 20 से 25% कम रखी है। क्यों रखी है ये? ताकि उनको अट्रैक्ट किया जाए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन को देखें, उसमें कोई कमी नहीं है, वो लोग खूब JNK के लोग तक ज्वाइन कर रहे हैं आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। पर लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी, मैं एग्री करता हूँ, हिचकिचाहट है अभी भी, लेकिन धीरे धीरे लोग खुल रहे हैं। उनको हमने इस ढंग से मोटिवेट करना है कि आर्म फोर्सेज में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और आर्म फोर्सेज कंप्लीटली निष्पक्ष, कंप्लीटली किसी रिलीजियस कम्युनिटी से कोई इसका वो नहीं, हम देश की एकता के लिए हर एक को साथ लेके चलते हैं। आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी टीचिंग क्या है ऑफिसर्स के लिए? ऑफिसर्स रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ हिज ट्रूप्स। आपके ट्रूप्स अगर मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, आपके ट्रूप्स क्रिश्चियन हैं, ऑफिसर क्रिश्चियन होता है। तो ये बहुत बड़ी टीचिंग है। और सर्वधर्म हमारे वहाँ एक छत के नीचे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ एक छत के अंदर में होता है हमारा। तो ये आर्म फोर्सेस न केवल मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे देश को ये एक मैसेज दे रहे हैं, भैया यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टुगेदर वी कैन ग्रो। और इंडिया हैज टू बी यूनाइटेड। अगर इंडिया हैज टू बिकम द स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग, whether he is Muslim, Hindu, and that's what the greatest teaching of the armed forces. Look at that. माइनॉरिटी इश्यूज के लिए क्या मैसेज है आपके? हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग, पुअर लोग आर्म फोर्सेस से डिपेंडेंस आए, उनके लिए हमारे पास स्पेशल कंसेशन है, ज़्यादा हम उनका ध्यान रखेंगे। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग भी फौज में आएँ, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं कि हमारा देश कितना बड़ा है। और हमारे देश की फिलॉसफी हमेशा कल्चर और हेरिटेज क्या है, सबको साथ लेके चलने की। वसुधैव कुटुंबकम, ये टीचिंग इंडिया की है। आज जो है देश को अलग करने के बजाय देश को साथ ले जाने वाले लोगों की ज़रूरत है। और इसी के लिए मैं आर्म फोर्सेस बिना कहे सुने ही एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। आर्म फोर्सेस का रोल बड़ा चुपचाप है, लेकिन सर्वधर्म सम्मान के साथ आर्म फोर्सेस आगे बढ़ रही है। ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ನವ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಆದ KM ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ, ಅವರ ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯವಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಇದು ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಯೂತಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈನಿಕ ಸೇರೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸೌತ್ನವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಯಾವುದು ಪಕ್ಕದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾರ್ಡ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಬಕನಿ ಸಾಬ್ ಅವರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. Today Sure Shot Academy has had a MOU with the Art of Living to conduct mind management and capacity building programs for the candidates who come to the Sure Shot Academy to pass out SSB. And it is a great occasion because these people have made an intention to serve the nation, and we are happy to guide them and give them the mind management tools so that they are resilient and they are able to get through their mission and their goal in life. हमारे मेजर जनरल
VPS बकोनी सर इधर शूरशेट अकेडमी ओपन करके देश का और हमारा पूरे समुदाय का एक सिक्योरिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमारे साथ बहुत सारे घटनाएं चल रही हैं बॉर्डर में, हमें बॉर्डर से बहुत दूर हैं। इसमें हमारा साउथ का जो लोग हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हमें इसलिए अवेयरनेस पैदा करना है। क्या कर्नाटका गवर्नमेंट होंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट होंगे और आंध्रा गवर्नमेंट होंगे, ये साउथ के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं इसको अवेयरनेस पैदा करना है। वो अवेयरनेस पैदा करने से क्या होता है, पूरे अब जो साहब ने बोला 13% हैं, हम एटलीस्ट 38% को रीच होना, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मीडिया वाले इसको बहुत से ज़्यादा आप इसको प्रोजेक्ट करें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा सिर्फ अकेडमी को नहीं है, इसका फ़ायदा देश को है। और जो भी जवान बनता है उसकी लाइफ बनती है। बड़ी समाज सेवा है। बकोनी साहब का बहुत योगदान है इसमें, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं। It's a rekindling of pride in oneself. To speak of me, General had taken me to my younger days. I feel very young once again. If I, at the age of 65, can feel young once again under his gaze, what it must have done to these youngsters is unbelievable. As Rajiv ji has rightly pointed out, and Ramesh ji also, it doesn't really matter where you come from. What matters is to which place you are looking up at and the determination with which you look at it. That is the most important message that the General had given today, which I also imbibe with some humility and great pride in him and in our friendship. Thank you very much.